हाँ जी स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫॉर टू ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਲਈ ਹੋਵੇ 1/C1 + 1/C2 ਤਾਂ 1/CS ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ दो ਲਈ एक शॉर्टकट फॉर्मूला हैगा, थोड़ी हेल्प कर देगा टाइम सेव करने ਲਈ। अगर दो कैपेसिटर देते हो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, सामने डिवाइड कर दो। हुण इस तरह दे अगर n कैपेसिटर सीरीज च लगे होण तां टोटल कैपेसिटी देखो 1/C 1/C 1/C। जब इसनूं सॉल्व करांगे तां टोटल आंसर आ जाऊगा C/n। ये भी डायरैक्ट तुसीं लिख सकदे हैगे हो। ठीक है, मैं तुहानूं एक्सप्लेन भी किया होया पहला। ठीक है, डेरिवेशन दे विच ते पैरेलल कॉम्बीनेशन च तां कोई रौला ही नहीं सीगा ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? बुक्स वगैरह च ना प्रॉपर लिखा होंदा है 2 and 3 and 4 आर पैरेलल। इन्ना लिखण दी लोड़ नहीं, तुसीं सर्किट बाय सर्किट सॉल्व करना है। मतलब कि सर्किट नूं रिड्यूस करते जाना। हुण देखो इहदे विचों की सॉल्व हो सकदा, पहला मैनूं दसो। 2 3 ते 4 इन्हां देखो तीनों कैपेसिटर दी एक प्लेट इस पॉइंट ते अटैच हैगी। देखो तीनों दी एक प्लेट एक जगह ते अटैच है ते दूसरी प्लेट दूसरी जगह पे अटैच है। तो तीनों आपसे 2 3 and 4 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ 2 3 4 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੈਰਲਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ P for ਪੈਰਲਲ P for ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2 + 3 + 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 + 3 5 5 + 4 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿੰਨਾ 9 ਫੈਰਡ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ A, ਇਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 9 ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 3 ਫੈਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 9 and 3 ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਤੇ 3 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 1/9 + 1/, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1/9 + 1/3। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4/9 ਤਾਂ C ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4/9 ਫੈਰਡ। इधर देखो इन्हां दोनों ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 4/9 ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27। ਸਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ आंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ सॉरी ਇਹ ਤਾਂ 9/4 ਹੈ। मैं गलत लिखा रेसिप्रोकल से तो सही करेंगे 9/4। हम देखो इन्हें सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 टेबल हो गया 9/4। कहने का मतलब अगर दो कैपेसिटर सीरीज है तो रेसिप्रोकल ना कर लो सॉल्व ਜਾਂ सीधा ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई सम नाल डिवाइड। तो आंसर की आ गया बोलो? ये सीगा ए कैपेसिटर, ए वाला कैपेसिटर दोनों तो मिलके एक कैपेसिटर बन गया कितना 9/4 फैरड का कैपेसिटर। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 2 and 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੇ 3 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। 2 and 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/2 + 1/3 ਆਨਸਰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਦੋ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 5। आ देखो
ऊपर वाली ब्रांच को सॉल्व करके मैं 6/5 फैरेड लिख देता। नीचे वाली ब्रांच क्या हो, इधर की है 4 फैरेड। आ देखो ये हो गया बी, ये हो गया ए। हुण ध्यान नाल देखो इस तो नेक्स्ट स्टैप की होगा। हुण ये दोनों का, इन्हां दोनों का कैपेसिटर का एक एंड इस जगह पे है, दूसरा एंड दूसरी जगह पे। ये दोनों आपस विच की हो गए, मैनू दसो पैरेलल हो गए। जे पैरेलल हो गए तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, तुहानू पता पैरेलल दे विच टोटल किवें करदे हुंदे आ, सीधा प्लस ये आ जाएगा 4 + 6/5, एलसीएम आ गया 5, ये आ गया 20 + 6, ये आ गया 26/5 फैरेड। ਇਹਦਾ मतलब A एंड B ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल कैपेसिटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 26/5 फैरेड आंसर आ गया। समझ आ गया? सिंपल जे क्वेश्चन। सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इधर देखो जी आप एक होर क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो इस तरह की अरेंजमेंट दी हुई है, ऊपर देखो टोटल कैपेसिटी पता करनी है ए ते बी दे विच। अगर तुसी ध्यान दिओ ए तो चल के जे बी ते पहुंचना है, ए तो चल के बी ते पहुंचना है, ए तो बी तक 3 रस्ते है। एक तो ऊपर रस्ता है, एक ये वाला रस्ता है, एक ये वाला रस्ता है। अगर कोई कैपेसिटर एक रस्ते दे विच आउंदे होण, वो सारे कैपेसिटर आपस विच की होने चाहिए है, सीरीज च। हुण मैनूं देखो आपां किवें सॉल्व कर सकते हैं, तुहानूं पता है। पहला ये जिहड़ी ऊपर वाली लाइन है इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर उन्होंने बाद चो सॉल्व कर लवांगे। हुण देखो ये है कि देखते जाओ, लिखण की जरूरत नहीं हुंदी एग्जाम दे विच कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। हुण मैनूं देख के दसो 8 8 8 8 चारों किस दे विच हो गए, सीरीज दे विच। सीरीज दे विच किवें सॉल्व करांगे, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 करके भी देख लो। तो मैं वैसे दादा इधर देखो 1/8 1/8 1/8 1/8, ये कितना आ गया 4/8, ये कितना आ गया 1/2, तो सी किससे इक्वल आ गया 2 फैरेड दे। इहदा मतलब 1 2 3 4 इन्हां नूं मैं सॉल्व करके एक कैपेसिटर बना लिया, किहड़ा 2 फैरेड दा। ठीक है, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। अगर n कैपेसिटर इक्वल होण सारे सीरीज होण, की करो हर दी कितनी कैपेसिटी है तो n ਨਾਲ डिवाइड करो। हुण देखो इत्थे कितनी सी, जिवें मैं तुहानूं दसदा हर कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी दा 1 2 3 4 4 कैपेसिटर टोटल हर कितने दा 8 फैरेड दा। टोटल कितने है इहो जे 4, तां भी आंसर कितना आ गया 2 फैरेड। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हुण आ देखो 1 2 3 ये तीनों की हो गया आपस सीरीज चा। देखो मैं ये वाली लाइन 1 2 3 इनू एक लाइन नु सॉल्व करके एक कैपेसिटर बनाना 1 2 3 उसी तरह 1/3 1/3 1/3 ਜਾਂ सीधा तरीका हर दी वैल्यू कितनी है जिन्ने हैगे है, हर दी वैल्यू कितनी है 3, किन्ने है हो जे ये भी 3 है, तो 3 नु 3 ਨਾਲ डिवाइड किया 3/3 कितना आ गया 1 फैरेड। आ देखो एक केवली ब्रांच भी सॉल्व हो गई। हुण आ जाओ तीसरी ब्रांच ते 5 ते 5, ये भी की आपस दे विच एक रस्ता ना, देखो दोनों चो इथों पर चलिए दोनों चो एक रस्ता ही पास हो रहा था, दोनों आपस में की हो गए सीरीज। सीरीज किवें होगी 1/5 + 1/5 ਜਾਂ दूसरा तरीका हर दी जिन्नी वैल्यू है जिन्ने जे हो जे हैगे है, किन्ने है इक्को जे 5 ते 5 वाले किन्ने हैगे टोटल 2 है। 5/2 आ देखो 5/2 कितना आ गया 2.5 फैरेड। तो एक कैपेसिटर कितना रह गया 2.5 फैरेड। हुण आ देखो इत्थे किहड़ा पॉइंट है बी पॉइंट है, इधर किहड़ा पॉइंट है राजे ए। हुण तुसीं ध्यान नाल देख के दसो ए ते बी दे विच टोटल कैपेसिटी जे पता करनी है 1 2 3 इन्हां तीनों कैपेसिटर दी प्लेट एक जगह ते, इन्हों तीनों कैपेसिटर दी नेक्स्ट प्लेट इधर वाली एक जगह ते, तो तीनों आपस विच की हो गए पैरेलल। तो टोटल कैपेसिटी बोलो बी एंड ए टोटल तीनों तो मिलके एक कैपेसिटर बनूंगा। पैरेलल दे जे तीनों पैरेलल है की करांगे प्लस, कितना हो गया 2 + 1 3 3 + 2.5 कितना आ गया 5.5 फैरेड आंसर आ गया। ठीक है, इसमें तुसीं नोट करो, इहो जी एक होर एग्जांपल करते हैं आपां। देखो जी आप इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं। हम देखो इन्होंने टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट कर कहता A to B। देखो करिए हम तुहानूं थोड़ा थोड़ा जिहा पता लगना शुरू हो जाएगा।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 2 3 ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰਲਲ ਪੈਰਲਲ P4 ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਪਲੱਸ ਹੋਗੀ 4 + 7 11 + 1 12 ਫੈਰਡ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12 ਫੈਰਡ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ P4 ਪਲੱਸ 8 + 2 + 2 ਇਹ ਵੀ 12 ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ 12 ਫੈਰਡ फिर नेक्स्ट आ जाओ ये तीनों आपस पैरेलल 7 + 3 + 2 ये भी 12 बन गया ये भी 12 फैरेड आ गया ये बन गया B ये बन गया A हुण मैनूं ये दसो A तो B तक जांदे जांदे कितने रस्ते है एक ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1/c 1/12 1/12 1/12 ਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 1 2 3 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 फैरेड आंसर आ गया ये हो गया पॉइंट ए ये वाला पॉइंट हो गया बी ये क्वेश्चन तो समझ आ गया इसको नोट करो एक और कर देंगे हम देखो देख थोड़ा सा सर्किट ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ A ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ A ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ B ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੇਖੋ 6 ਤੋਂ 6 ਐਂਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 6 ਤੇ 2 ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ 6 ਐਂਡ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ 6 ਤੇ 2 ਫੈਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਲੀ ਪਲੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 4 कैपेसिटर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ 6 ਐਂਡ 3 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ 6 ਐਂਡ 3 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 6 ਐਂਡ 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ 6 ਐਂਡ 3 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1/6 + 1/3 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 लिख देना मैं ये लिख देना 3 ये आ गया 9/18 तो ये कितना आ गया 1/2 और C दी वैल्यू कितनी आ गई 2 फैरेड ठीक है ज्यादा इस तरह सॉल्व कर सकते ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 * 3 18 6 + 3 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਜਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 2 कैपेसिटर लइए नीचे सामना डिवाइड करो इच कंफ्यूज ना होना एक चीज ऑप्ट कर लो भाਵੇਂ रेसिप्रोकल ना करना शुरू करो भाਵੇਂ इस तरह एक चीज ऑप्ट करके रखो मिक्स ना करना 6 एंड 3 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 2 ਫੈਰਡ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿੰਨਾ 2 ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ 7 ਫੈਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 7 फैरेड ਦਾ ਇਹ A ਤੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 4 फैरेड ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ B ਤੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ देख के दसो क्लोजिंग एंड तो चलो वो उसको क्लोज करता ना हुण इन्हां दोनों नूं देखो इन्हां दोनों कैपेसिटर दा इस कैपेसिटर की वायर इत्थे लगी हुई है इस कैपेसिटर की वायर भी इत्थे लगी हुई है एक दोनों की एक प्लेट कॉमन होगी हुण दूजी प्लेट देखो इस कैपेसिटर की एक प्लेट घूम के वायर इत्थे ए वाली भी इस जगह ते ਇਹਦਾ मतलब दोनों की एक प्लेट एक जगह ते कॉमन है तो दोनों कैपेसिटर आपस में की होने चाहिए पैरेलल होने चाहिए पैरेलल सॉल्व तो 2 and 2 ये कितना आ गया 4 फैरेड एक कैपेसिटर कितना है 7 फैरेड का ठीक है तो फिर एक है 4 फैरेड सॉल्व हो गया हुण मैनूं देख के दसो ये तीनों आपस की है ए तो चल के बी ते पहुंचो रास्ता की है सेम हाँ टेढ़े होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा टेढ़ा मुड़ जाएगा आ देखो तीनों आपस में सीरीज जे सीरीज है तो टोटल कैपेसिटी 3 ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1/c ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 1/7 1/4 1/4 एलसीएम कितना आ जाएगा 28 ये हो गया 4 प्लस 7 प्लस 7 ये हो गया 18/28 सी आ गया 28/18 इसको सॉल्व कर लो एक कितना आ जाएगा 14/9 फैरेड आंसर ਇਹਦਾ मतलब देखो ध्यान ਨਾਲ A एंड B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टोटल कैपेसिटी आई 14/9 फैरेड आंसर आ गया इसको नोट करो एक क्वेश्चन होर करते हैं वर्गा देखो जी आप एक होर क्वेश्चन करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ B ਤੇ ਦੇਖੋ A वाला भी रास्ता है फिर इधरों भी वापस आया जा सकता है जो एंड ते जाके भी वापस आया जा सकता है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 3 ਫੈਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੈਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 3 ਫੈਰਡ ठीक है सर्किट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 3 इसको लिख देना है 2 एंड इसको भी लिखना पड़ेगा 3 फैरेड हम ध्यान ਨਾਲ देखो मैं एंड वाले सर्किट ਨੂੰ सॉल्व कर रहा आ तीनों देखो ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ एंड ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 3 3 ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ सीरीज च है कि ज्यादा अड अड होंगे तो रेसिप्रोकल ना करते ਜਾਂ सिंपल तरीका सीरीज जो इक्को जे हुण जिन्नी हर दी वैल्यू है तो जिन्ने है किन्नी हर दी वैल्यू 3 तो किन्ने आ इक्वल जेडे सीरीज है 1 2 3 तो कितना बन गया 3/3 1 तो मैं की लिखता 1 बनाता मतलब जेड़ा तुसी तिन्ना तो एक कैपेसिटर बनाना वो किसी जगह ते मर्जी ला दो भावें इस दी जगह ते ला दो भावें इस दी जगह ते ला दो भावें इस दी जगह ते ला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ आया हुण देखो 3 3 3 आप सीरीज सीगे इन्हां दा 1 फैरेड बन गया हुण मैनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल तुहानूं समझ भी आ गया होना इहदा फर्स्ट डायग्राम हो गई ना हुण सैकंड ते आओ देखो सैकंड फिर ए वाले एंड नूं सॉल्व करते हैं हुण आ देखो किवें करांगे आ देखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਗੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 2 and 1 हो गए 2 देखो मैं डायग्राम बनाती है देखो सारी 3 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 and 2 ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ दूसरी प्लेट दूसरी जगह ते दोनों आपस में की हो गए पैरेलल ते 2 and 1 दा रिजल्टेंट कितना आ गया इतना आ गया 3 हुण अगर तुसी ध्यान दोगे फिर वही अरेंजमेंट फिर बन गई क्लोजिंग एंड तो देखो 3 3 3 तीनों आ देखो इधरों चलांगे तो एक रास्ता एक रास्ता एक रास्ता एक रास्ता आ देखो जो चार्ज आया इधरों चार्ज एक जगह दिखता इधर चला गया 2 1 बाकी अगे चला गया बट अगे जिहड़ा चार्ज होगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈसेज ਹੈਗਾ आ देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 and 3 ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ 1/3 1/3 1/3 ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੈ ਹਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3 3/3 1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਫੈਰਡ
इधर देखो ये कितना हैगा 3 फैरेड, ये 3 का रिजल्टेंट कितना आ जाऊगा 1 फैरेड। हाँ देखो मैं होर सॉल्व कर रहा है सर्किट ते अगे तुहानू फिर ये 2 एंड 1 आपस विच फिर की हो गए पैरेलल, तो रिजल्टेंट कितना आ जाऊ देखो ये आ गया 3, ये कितना हो गया 3, ये वाला भी कितना है 3। हुण आ देखो ध्यान नाल आ देखो जिहड़े पॉइंट सीगे ये सीगा ए पॉइंट ये हैगा बी पॉइंट। ना देखो तीनों आपस विच की हो गए हुण सीरीज, ते तीनों दा रिजल्टेंट की आऊगा मैनूं दसो। तीनों सीरीज है आ देखो एक रस्ता ठीक है। आ देखो ये कितना आ गया 3 3 3 1/3 जो सॉल्व करांगे आ जाऊगा 1 फैरेड आंसर। अच्छा तुसी पॉज करके आप दे आप भी आंसर सारे निकाल के देखियो, इसको नोट करो एक क्वेश्चन करते हैं आप एक। देखो जी आप एक क्वेश्चन होर करते हैं। एक्चुअली जिन्हें क्वेश्चन का कोई एंड नहीं, जिन्ने मर्जी क्वेश्चन करते जाओ, अपन तो मैथड तक ही मतलब है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इधर 2 लैक्चर च पूरा करांगे जिवें मैं पहला दस्सिया ठीक है। तो कुछ असाइनमेंट्स दे विच ते जो बुक आप SL अरोड़ा फॉलो कर रहे हैं उसके विचों भी क्वेश्चन कर लवांगे ठीक है। हुण इधर देखो जिवें सर्किट है ये टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करन नूं किहा है इन्हां ने A ते B। हुण देखो तुसीं अपने आप करन दी कोशिश करो, पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सॉल्व हो रहा वो देखो जिन्ने सर्किट सॉल्व होंगे ए, चलो ए तो चलदा मैं ए तो अगे की लग्या होया मैनूं दसो 1 फैरेड, बट इस बॉक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व करिए। ਹੁਣ देखो चार्ज ਇੱਥੇ कितनी जगह डिवाइड हो गया 2, एक तो चार्ज इधर चला गया, इधर देखो आ देखो चार्ज जे डिवाइड होगा एक तो रास्ता 3 एंड 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ देखो 3 एंड 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਤੇ 6 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ 3 ਤੇ 6 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਉਹੀ 1/3 1/6 1/c करके ठीक है। ये आ जाएगा ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ सीरीज है सीरीज से रिजल्टेंट तो निकालना आंदा दो ਦਾ ਜਦੋਂ 1 करो जाओ मल्टीप्लाई नीचे सामना डिवाइड। ਇਹ देखो ਇਹਦਾ एलसीएम लेके ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई सिंपल तरीके नाल ही कर दिया। देखो 3 ਤੇ 6 है ना, इन्हां दी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 6 * 3 18 6 + 3 9 2 फैरेड। ये ज्यादा सॉल्व करके दिखाने की लोड़ नहीं, रफ दे विच दिखा देता मैं। ये देखो मैं 3 ਤੇ 6 ਦਾ रिजल्टेंट 2 फैरेड करता, तो इधर देखो मैं एक कैपेसिटर लगा देना है कितना 2 फैरेड का। ओके आ देखो ए वाली ब्रांच में सॉल्व कर ली। हुण ऊपर वाली ब्रांच देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ है इधरों 2 फैरेड चो चार्ज गया फिर इधर गया इधर तक। आ देखो 2 ਤੇ 2 दोनों ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ पास हो रहा है सेम चार्ज, दोनों की है सीरीज। सीरीज किवें सॉल्व करांगे वही 1/2 + 1/2 ਜਾਂ दोनों एक दो इक्को जे है। देखो दो इक्को जे हर दी वैल्यू कितनी है 2 है कितने 2 की आ गया 1 फैरेड। आ देखो 2 ਤੇ 2 ਦਾ रिजल्टेंट कितना आ गया 1। आ देखो मैं इधर लिख देना 1 फैरेड लिखता। आ देखो मैं इसनू इन्हां दोनों ਨੂੰ सॉल्व करके एक लिखता, इन्हां ਨੂੰ सॉल्व करके एक लिखता। ਹੁਣ नीचे चार्ज चलेगा देखो वायर चलेगी। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੇ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ 3 ਤੇ 2 ਪੈਰਲਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਾयर ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾयर ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, इसकी वायर इधर लगी हुई है, इसकी भी घूम के इधर लगी हुई है। मतलब दोनों कैपेसिटर का एक जगह पे लिखा हुआ पॉइंट कनेक्टेड है, एक दूसरी प्लेट के कनेक्टेड है, तो दोनों आपस में फिर की हो गए 3 and 2 पैरेलल। पैरेलल दे विच रिजल्ट कितना आंदा हुंदा प्लस कर दो, पैरेलल 3 ਤੇ 2 ਦਾ रिजल्टेंट कितना आ गया 5 फैरेड। आ देखो ये आ गया बी। हुण ध्यान नाल होर देखो की है मैं दस दे जाओ ये 1 ਤੇ 2 ये भी आपस में की हो गए हुण पैरेलल हो गए देख ही रहा। आ देखो 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਥੇ ए वाले 1 2 इधर दोनों प्लेट्स एक जगह पे कॉमन, दूसरे पॉइंट पे कॉमन 1 ਤੇ 2 कितना हो गया 3। तो एक ही रह गया देखो 1 and 2 ये आ गया 3 फैरेड हो गया। फिर की आगे की लगा हुआ है सॉरी पहला वाला 1 आप लिखना भूल गए। आ देखो पहला हैगा 1 फैरेड, फिर 1 ਤੇ 2 आपस में पैरेलल इन्हां दा एक बन गया कितना आ गया 3। फिर आगे जाके किस तरह लगा हुआ है 5 फैरेड। हुण मैनूं दसो ये तीनों आपस दे विच की है कि ए ते बी आ सारा सीरीज दा इहदा मतलब टोटल रिजल्टेंट ए ते बी दे विच कितना आ गया 1/, ये आ गया 1/1 1/3 प्लस 1/5। देखो इसको सॉल्व करिए इहदा एलसीएम बोलो कितना आ जाऊगा, इसका एलसीएम 15,
ये तो आंदा ही है राजे करना तुहानू। ये आ गया 15, ये आ गया 15, ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये कितना आ गया 23 बाई 15। ਇਹਦਾ मतलब टोटल कैपेसिटी ए एंड बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15 ਬਾਈ 23 फैरेड आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। फिर आप एक होर सर्किट कर दिया। देखो जी आप एक क्वेश्चन होर करते हैं। एक्चुअली जिन्ना क्वेश्चन का कोई एंड नहीं, जिन्ने मर्जी क्वेश्चन करते जाओ, अपन तो मैथड तक ही मतलब है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इधर, 2 ਲੈਕਚਰ ਚ पूरा करांगे जिवें मैं पहला दस्सिया। ठीक है, तो कुछ असाइनमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ बुक आप SL अरोड़ा फॉलो कर रहे हैं उस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी क्वेश्चन कर लवांगे। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਧਰ देखो जिवें सर्किट है, ये टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ A ਤੇ B। ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ सर्किट सॉल्व ਹੁੰਦੇ ਆ। A चलो A ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ मैं, A ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1 फैरेड। बट इस बॉक्स को आप सॉल्व करिए। हुण देखो चार्ज इत्थे कितनी जगह डिवाइड हो गया 2, एक तो चार्ज इधर चला गया, इधर देखो आ देखो चार्ज जे डिवाइड होगा, एक तो रास्ता 3 एंड 6 दे विचों आ देखो 3 एंड 6 दे विचों रास्ता की है सेम। ਇਹਦਾ मतलब 3 ਤੇ 6 आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ सीरीज, ਤੇ 3 ਤੇ 6 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਉਹੀ 1/3 1/6 1/c करके। ठीक है, ये आ जाएगा। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ दोनों सीरीज है, सीरीज से रिजल्टेंट तो निकालना आंदा तो ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ 1 करो तो मल्टीप्लाई नीचे सामना डिवाइड। ਇਹ देखो ਇਹਦਾ एलसीएम लेके ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई सिंपल तरीके नाल ही करते हैं। देखो 3 ਤੇ 6 है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 6 * 3 18, 6 + 3 9 2 फैरेड। ये ज्यादा सॉल्व करके दिखाने की लोड़ नहीं, रफ ਦੇ ਵਿੱਚ दिखा देता मैं। ये देखो मैं 3 ਤੇ 6 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 2 फैरेड करता, तो इधर देखो मैं एक कैपेसिटर लगा देना है कितना 2 फैरेड का। ओके आ देखो ये वाली ब्रांच मैं सॉल्व कर ली। हुण ऊपर वाली ब्रांच देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ है, इधरों 2 फैरेड चो चार्ज गया, फिर इधर गया ਇੱਥੇ तक। आ देखो 2 ਤੇ 2 दोनों ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ पास हो रहा है सेम चार्ज, दोनों की है सीरीज। सीरीज किवें सॉल्व करांगे वही 1/2 + 1/2 ਜਾਂ दोनों एक दो इक्को जे है। देखो 2 इक्को जे, हर दी वैल्यू कितनी है 2 है कितने 2 की आ गया 1 फैरेड। आ देखो 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। आ देखो मैं इधर लिख देना है 1 फैरेड लिखता। आ देखो मैं इसनु इन्हां दोनों ਨੂੰ सॉल्व करके एक लिखता, इन्हां ਨੂੰ सॉल्व करके एक लिखता। ਹੁਣ नीचे चार्ज चलेगा, देखो वायर चलेगी। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੇ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ 3 ਤੇ 2 ਪੈਰਲਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਇਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, इसकी वायर इधर लगी हुई है, इसकी भी घूम के इधर लगी हुई है। मतलब दोनों कैपेसिटर का एक जगह पे लिखा हुआ पॉइंट कनेक्टेड है, एक दूसरी प्लेट के कनेक्टेड है। तो दोनों आपस में फिर की हो गए 3 and 2 पैरेलल। पैरेलल दे विच रिजल्ट कितना दा हुंदा प्लस कर दो। मतलब 3 ਤੇ 2 ਦਾ रिजल्टेंट कितना आ गया 5 फैरेड। आ देखो ये आ गया बी। हुण ध्यान नाल होर देखो की है मैं दस दे जाओ। ये 1 ਤੇ 2 ये भी आपस ਵਿੱਚ की हो गए हुण पैरेलल हो गए, देख ही रहा। आ देखो 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਥੇ एवले 1 2 इधर दोनों प्लेट्स एक जगह ते कॉमन, दूसरे पॉइंट ते कॉमन। 1 ਤੇ 2 कितना हो गया 3, तो एक ही रह गया देखो 1 and 2 ये आ गया 3 फैरेड हो गया। फिर की अगे की लगा हुआ है सॉरी पहला वाला 1 आप लिखना भूल गए। आ देखो पहला हैगा 1 फैरेड, फिर 1 ਤੇ 2 आपस ਵਿੱਚ पैरेलल इन्हां दा एक बन गया कितना आ गया 3। फिर अगे जाके किस नाल लगा हुआ है 5 फैरेड। हुण मैनूं दसो ये तीनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि A ਤੇ B आ सारा सीरीज। तो ਇਹਦਾ मतलब टोटल रिजल्टेंट A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/, ये आ गया 1/1 1/3 + 1/5। देखो इसको सॉल्व करिए, ਇਹਦਾ एलसीएम बोलो कितना आ जाऊगा। इसका एलसीएम 15, ये तो आंदा ही है राजे करना ਤੁਹਾਨੂੰ। ये आ गया 15, ये आ गया 15, ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये कितना आ गया 23/15। ਇਹਦਾ मतलब टोटल कैपेसिटी A and B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15/23 फैरेड आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। फिर आप एक और सर्किट कर दिया। देखो इत्थे मैं एक होर कॉन्सैप्ट समझाना तुहानूं जिहड़ा हैगा। हुण इधर देखो तुहाडे कोल इस तरह की अरेंजमेंट दी हुई है। मान लो पहले पार्ट दे विच
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ A ਐਂਡ B ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ A ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ A ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ B ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। कैपेसिटी का मतलब A एंड B दे विच अगर मतलब बैटरी लगा दा मैं A एंड B दे विच। हुण देखो अगर बैटरी A एंड B दे विच जाऊंगा, पॉजिटिव विचों चार्ज आएगा, वो चार्ज की होगा देखो इधरों इस चो भी इत्थे जाके दो जगह डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, दोनों मिलके फिर अगे चले गए। हुण इस तो बाद चार्ज की जाना चाहिए B वाल। हुण इधर देखो जे चार्ज इधर जाने की कोशिश करूंगा, C की है, C तो बैटरी नाल कनेक्टेड नहीं, C पॉइंट तो आप विच लेके नहीं आ रहे, तो हुण चार्ज एवें तो है नहीं गा। जाके देखो चार्ज इधर गया, सपोज इधर कोई भी Q चार्ज गया, इत्थे जाके चार्ज दो जगह डिवाइड हो गया, ये वाला चार्ज चलो वापस बैटरी च चला गया। हुण जिहड़ा इधर चार्ज हैगा मैनूं ध्यान नाल दसो, ये चार्ज C पॉइंट ते जाके खत्म हो गया। ਇਹਦਾ मतलब C पॉइंट ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਜ क्लोज्ड सर्किट आ गया, फिर तो तुसी कुछ कह सकते सी। इस तरह भी नहीं होना चाहिए जे मैं इन्हू इस तरह इधर कनेक्ट कर दिंदा, चार्ज इधर भी जाना सीगा, चार्ज इधरों भी चले जाना सी, बट मैं इत्थे दसना की चाहुंदा। आ देखो ध्यान, हुण जदों मैं A ते B दे विच कैपेसिटी पता करनी है तो जिहड़ा C होएगा, C ध्यान रखियो C आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा। C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ C ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, A ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ C ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, A ਵਾਲਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 4 and 2 आपस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਫੈਰਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ 3 ਫੈਰਡ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ B। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1/6 + 1/3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 9, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਫੈਰਡ ਆंसर ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ A ਐਂਡ C ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ A ਐਂਡ C ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ C ਤੇ, ਜਦੋਂ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ C ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਅਗਰ B ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਵੱਲ ਚਾਰਜ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਊਟ ਆਫ सर्किट। B ਨੂੰ ਹੁਣ B ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ C ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ बैटरी एक पॉजिटिव ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ C ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 and 4 देखते जाओ, उसी तरह सेम की आ गया 6 फैरेड, इधर चार्ज कितना लगा हुआ है, दूसरा सॉरी कैपेसिटर कितना लगा हुआ है 4 फैरेड का। हुण बोलो टोटल कैपेसिटी एंड सी, ये दोनों आपस की हो गए सीरीज, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 24, नीचे सम नाल डिवाइड ये कितना आ गया 2.4 फैरेड आंसर आ गया, ठीक है। ये तुसी ध्यान रखना किस नूं सर्किट दे विच रखना, किस नूं आपां सर्किट दे विच बाहर रखना। असाइनमेंट इस नाल दे क्वेश्चंस होणगे, इसनूं एक बार नोट करो। इस तो बाद देखो एक आपां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करदा तुहाडे सामने, तुसी क्योंकि इहदे विच इंपॉर्टेंट की है तो बड़ा सिंपल है। हुण तुहानूं मैं ए ते बी दे विच कैपेसिटी कैलकुलेट करन नूं कहदा तां तुहानूं पता CAB मतलब CS ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਊਗਾ 1/3 1/4 1/5। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 4 ਐਂਡ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ 60 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 and 12 27, ये आ गया 47 60 तक कैपेसिटी कितनी आ गई
60 बाय 47 फैरेड। मेरा मतलब इसनू कराउण दा तां है। मैं क्वेश्चन नू की चेंज करना चाहना है। हुण देखो मैं फिर कहना है, आ देखो मैं फिर क्वेश्चन लेके आया, फिर एक क्वेश्चन है देखो एक ट्रिक हैगी राजे, बड़ी हेल्प करेगी तुहाडी। फिर कैपेसिटर हैगे आ 3 फैरेड दे, 4 फैरेड दे, 5 फैरेड दे। मैं कहूँगा ए ते बी च कैपेसिटी पता करो, हजे मैं चेंज नहीं किया, तुहाडे सामने आता, तुसीं बड़ा ईजीली फाइंड आउट करोगे। मैं कह रहा है इत्थों एक वायर लगा के मैं इस गैप दे विच लगा दी, इधरों एक वायर शुरू की, इन्हां दे विच वाला गैप छड्ड के नैक्सट ते लगा दी। इस मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर ते इस प्लेट तो वायर शुरू करके ये वाला गैप छड्ड के नैक्सट ते ला दी। हुण इस दी इधरों गैप शुरू करके मैं इस ते लगा दी। हुण तुहानूं मैं पुछां टोटल कैपेसिटी कितनी है ए ते बी दे विच। सिंपल ट्रिक की है, अगर इस तरह का कदे भी सर्किट होवे जो कि पहला सीरीज सी, अगर स्टार्टिंग तो 3 लई 3 लई सिर्फ 3 लई, अगर इधरों चक के वायर तुसीं इस गैप च लगा दो तो इधरों इस ਤਾਂ तीनों कैपेसिटर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ पैरेलल हो जाएंगे ਤੇ टोटल कैपेसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰਕੇ 3 + 4 + 5 15 ਫੈਰਡ। क्वेश्चन ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਮਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ एक कैपेसिटर है, आ देखो मैं कैपेसिटर की ये प्लेट करदा, एक फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, इसकी प्लेट चलो मैं सिंपल लिखदा, एक क्रॉस ना लिखदा इसनू, एक टिक ना एक क्रॉस ना, एक टिक क्रॉस समझ गए, ठीक है। हुण इधर देखो, हुण मैं कोई भी पॉइंट ले ला, हुण आ देखो मैं पॉइंट ले ला, इसनू मैं टिक कर देना। हुण ये जिहड़ा फर्स्ट कैपेसिटर है आ देखो, ये देखो इसकी ये प्लेट वायर इत्थों गई, एक इस नाल अटैच है टिक, मतलब मैं इधर राइट दा मतलब इवले साइन लगाता, मतलब ए वाली प्लेट है जिहड़ी इस नाल अटैच है, ठीक है। हुण इस च भी देखो मैं बाद च लगाऊंगा अगले साइन में, आ देखो मीनस आ हुण जिहड़ा ए वाला कैपेसिटर इसकी ए वाली प्लेट आ देखो, ये इधरों घूम के आऊगी, ये कित्थे लगूगी इधर, तेरा मतलब इस कैपेसिटर की एक प्लेट ते इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट कित्थे कॉमन है, सेम जगह पे। हुण ये जिहड़ा कैपेसिटर है इहदी भी आ वाली प्लेट देखो, ये भी घूम के आके इधरों गई, वायर ही हैगी है, वायर तो इधर वायर का तो मैं वायर जिधर मर्जी कितनी मर्जी वायर्स कटो, वायर ते किहड़ा ड्रॉप होना हुंदा तुहानूं पता है। हुण इधर देखो, इधर जाएगी, ये भी इस पॉइंट पे मिल गया, आ देखो। हुण देखो तीनों कैपेसिटर दी एक एक प्लेट, प्लेट का कोई मतलब नहीं होंदा, जो प्लेट पैरेलल दा तुहानूं मैं दसदा, ये दोनों कैपेसिटर आपस दे विच की है मैनूं दसो, पैरेलल। जे मैं इस तरह भी करदा, हाँ देखो मैं इसकी प्लेट इस नाल ला दा, इसकी प्लेट घुमा के इस नाल लगा दा ते उल्टा करदा, तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। कैपेसिटर नूं एवें रखो भावें एवें रखो, उस तरह कोई फर्क नहीं पै रहा। हुण मैं इत्थे की दसना चाहुंदा, ये तीनों कैपेसिटर दी एक एक प्लेट, इसकी ए वाली इधरों इसकी ए वाली, इसकी ए वाली इस पॉइंट पे कॉमन है। हुण आपां एक होर पॉइंट ले लैंदे हां जिसनूं आपां क्रॉस कह दिंदे हां। हुण आ देखो आ प्लेट जिहड़ी हैगी इस कैपेसिटर दी क्रॉस वाली प्लेट, ये जाके क्रॉस नाल अटैच होगी, इस कैपेसिटर दी भी क्रॉस वाली प्लेट किस नाल अटैच होगी, क्रॉस नाल अटैच होगी, इस कैपेसिटर दी भी क्रॉस वाली प्लेट इस नाल अटैच। समझ आया, मतलब तीनों कैपेसिटर दियां एक एक प्लेट कित्थे कॉमन है, जिथे मैं टिक लगाई हुई है। तीनों कैपेसिटर दियां दूसरी प्लेट्स कित्थे कॉमन है, जिथे मैं क्रॉस लगाया हुआ। तो जो तीन कैपेसिटर दियां एक प्लेट एक जगह ते कॉमन होण, दूसरी प्लेट दूसरी जगह ते कॉमन होण, उन्हां नूं की कहंदे हुंदे आ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 15 फैरेड आ गई। तुसीं इसनूं नोट करो, मैं एक एग्जांपल भी दसदा। हुण इधर देखो, जिवें ए वाली एग्जांपल है, देखो इधर मैं एक समझाउणा तुहानूं, ये क्वेश्चन करन दे विच बड़ी अपनी हेल्प होएगी इस ट्रिक नाल। हुण इधर देखो मैं लिख देना है 3 फैरेड 4 फैरेड 1 फैरेड। हाँ देखो रजिया मैं कैपेसिटर देते हुए है 10 फैरेड, मतलब टोटल 4 कैपेसिटर देते, टोटल कैपेसिटी सीरीज से होगे सारे फाइंड आउट कर लोगे। बट मैं इधर अगर इस तरह करता, हाँ देखो देखो तो ये तो वही बन गया ना, ये वाला केस।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ 3 4 ਤੇ 1 ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਇਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 3 4 1 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 4 3 7 plus 1 8 ਫੈਰਡ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਫੈਰਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 1/8 plus 1/10 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 80 ਸਾਹਮਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 40/9 ਫੈਰਡ ਆਨਸਰ। ठीक है, ये सीगे अज कुछ क्वेश्चन कुछ सर्किट सीगे जिहड़े सिंपल दे भी सीगे, तुहानूं कुछ स्टार्टिंग सीगी। अज नैक्सट जिहड़ा लैक्चर वो भी आपां न्यूमेरिकल्स दे उपर ही रखांगे, उस दे विच आपां कुछ कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करांगे ते हर कैपेसिटर दे विच चार्ज फाइंड आउट करांगे ते उस दे विच कुछ होर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह दी सीरीज पैरेलल कॉम्बीनेशन सीखांगे। तुसीं तद तक इस नूं नोट करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।